So few days back I got a DM where someone asking कि यार कॉलेज मिस्टेक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं. So I thought कि ठीक है बात करते हैं इसके ऊपर कि 5 mistakes you should avoid in college. But before that, let me give you some context. I have done offline college for a year and then I have dropped out. If you don't know, you can check out the dropout video. And then I am currently doing online degree for sake of degree, and why not? And also creating content, self-learning, and freelancing stuff. Okay, so I have experienced both of the thing, offline and online thing. ठीक है, so I have enough knowledge, enough experience to talk about it. So I thought कि ठीक है बात करते हैं इसके ऊपर. एंड हम बात करेंगे 5 मिस्टेक्स के ऊपर. बट उससे पहले यार एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, द पर्सपेक्टिव फ्रॉम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ठीक है, माई पर्सपेक्टिव इज कॉलेज इज गुड फॉर फन, इज गुड फॉर मेकिंग फ्रेंड्स, मेकिंग connections, making relationships better, and yeah, why not? But college is not that good for learning, or it can't increase your income potential. So this is my point of view, and it is for most of the people. Like I saw कि भाई 90% of the जो people होते हैं ना कॉलेज में, they are not interested in the college curriculum, in the subjects actually, right? But they are just doing it for sake of the degree. So for them, this is the video. इफ़ यू आर समवन जो 10% में आते हैं, इफ़ यू आर समवन कि तुम्हें अगर क्लियर है पूरा कि भाई कॉलेज में ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, इसके बाद मुझे ये करना है, मास्टर्स करना है, एंड बट नॉट. और इफ़ आर समवन जिसके लिए कॉलेज डिग्री एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, लाइक डॉक्टर्स, लाइक आई डोंट नो, मे बी रिसर्चर्स एंड ऑल. सो फॉर देम दिस इज़ नॉट द वीडियो. सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ. ठीक है, अब 5 मिस्टेक्स you should avoid in college. Okay, and this is related to self improvement. The first point is taking college study seriously. Yeah, this is the biggest mistake for the students who are not passionate enough or who are not interested enough in the college studies, but फिर भी ये लोग करते हैं because of the CGPA. ठीक है, and this is a very, I think this is a very huge mistake. वेरी ह्यूज मिस्टेक क्या होता है, दिस इज़ अ ह्यूज मिस्टेक, एंड यू शुड नॉट डू दैट इफ़ यू आर एक्चुअली में नॉट इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स. ठीक है, जस्ट मेंटेन अ डिसेंट इनफ CGPA, just try to pass the subjects, बस दैट्स इनफ, एंड सेव द टाइम एंड एनर्जी फ्रॉम द कॉलेज स्टडीज़. ठीक है, अगर तुम्हारे कॉलेज में 75% अटेंडेंस नहीं है, देन सेव द टाइम फ्रॉम देयर. अगर तुम्हें लगता है कि हमें इतना कम टाइम पढ़ के इतना मार्क्स आ सकते हैं, तो सेव द टाइम फ्रॉम देयर. ठीक है, एंड आई विल टेल यू कि कहाँ पे तुम्हें इन्वेस्ट करना हो टाइम एंड एनर्जी. बट या द फर्स्ट स्टेप इज डोंट टेक योर कॉलेज स्टडीज सीरियसली. ठीक है, डोंट टेक एकेडमिक्स टू सीरियसली. सेकेंड मिस्टेक इज अराउंड योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. ठीक है, जब हम एक डिसेंट कॉलेज में जाते हैं या एक अच्छा कॉलेज में जाते हैं ना, देयर are a lot of different extracurricular activities we can involved in, especially if you want to grow in terms of your characteristic development and all. Then you should participate in those things, in those clubs, in those extracurricular things, right? But हम नहीं करते बहुत बार. So this is a second mistake and I have done it. ठीक है, I was in Manipal, which is a really good college for this kind of things. I'm not talking about branch or learning here. I'm talking about the exposure wala thing, and that was the main reason I got into Manipal. But I don't know, मुझे लगा कि it is a huge time waste, but it's actually not. If you're in first year or second year, then this is a really cool things to do. ठीक है, जितना हो सके एक्सप्लोर करो इन योर क्लब्स, इन योर सोसाइटीज एंड ऑल. बट डोंट टेक पार्ट ओनली फॉर लर्निंग द टेक्निकल स्टफ, राइट? बहुत लोग जैसे पार्टिसिपेट करते हैं, मे बी लर्न अबाउट कोडिंग और लर्न समथिंग न्यू स्किल, बट डोंट डू दैट. ठीक है, फॉर दिस आई बिलीव सेल्फ लर्निंग इज़ मच मोर सुपीरियर. बट हाँ, इंटरेक्शन करने के लिए पार्टिसिपेट करो. ठीक है, कनेक्शंस बनाने के लिए पार्टिसिपेट करो उन क्लब्स एंड ऑल, उनमें. ठीक है, अच्छा, द थर्ड पॉइंट इज सेल्फ लर्निंग रिलेटेड पॉइंट. ठीक है, most of the college student don't invest enough time, enough energy in the self learning part. तो इसीलिए द पॉइंट मैंने जो बोला था पहले कि एकेडमिक एरिया से जितना हो सके टाइम एंड एनर्जी को सेव करो, बिकॉज वी नीड टू इन्वेस्ट दोस इन सेल्फ लर्निंग पार्ट, राइट? एंड ऑल्सो जो सेकंड पॉइंट था हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उसमें पार्ट लो, बट वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो. ठीक है, जितना तुम्हें लग रहा है कि एक्सपोजर का नीड है उतना पार्ट लो,
एंड देन फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ लर्निंग स्टफ। ठीक है, अब सेल्फ लर्निंग में क्या आता है हमारा? सेल्फ लर्निंग में आता है लर्निंग डिफरेंट स्किल्स, बिल्डिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। आई ऑलवेज बिलीव इन प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग। ठीक है, जितना हो सके प्रोजेक्ट बनाओ, बट हाँ, वन मोर थिंग, डोंट बिल्ड मोर देन वन प्रोजेक्ट एट ए टाइम एज अ कॉलेज स्टूडेंट, बिकॉज तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारा एक टाइम और एनर्जी तुम्हारा जा रहे हैं एकेडमिक में, एंड देन यू आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन द एक्सपोजर वाला थिंग, कॉलेज एक्स्ट्रा करिकुलर वाला थिंग, एंड नाउ यू नीड टू बिल्ड वन पर्सनल प्रोजेक्ट दैट कैन बी, मुझे एक साल के अंदर एक इंटर्नशिप चाहिए इन डेवलपमेंट, दैट कैन बी अ गुड प्रोजेक्ट. So you need to now learn the skills related to this, and then you need to maybe outreach or something like that. और मे भी हो सकता है कि मुझे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, सो दैट कैन बी अ गुड प्रोजेक्ट ऑल्सो. सो यू नीड टू invest those time, specific time, and you know, to learn skills and all related to personal branding, and then you can monetize that thing, right? So this can be a good project. So इस तरीके से one project at a time बनाओ, and हाँ, feel free to explore with different stuff. 3 महीने 2 महीने दो एक प्रोजेक्ट को, अच्छा नहीं लगा तो उसको स्किप करो, एंड देन अगेन 2-3 महीने दो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन, सेल्फ लर्निंग. I will make maybe another video detailed on detail में मतलब self learning के ऊपर. But yeah, this is the third step or third mistake you can say. Now the fourth mistake I watched a lot is relationships. Okay, college is a really good place for trying different thing. ठीक है, कि तुम्हारा किस काइंड ऑफ ग्रुप में तुम्हें जाने का मन हो रहा है, एंड किस काइंड ऑफ लोग तुम्हें पसंद आ रहा है. यू कैन एक्सप्लोर दोज थिंग्स, एंड दिस इज अ गुड कॉलेज इज रियली गुड प्लेस फॉर दैट. I am not too much into that in my first year. So yeah, but you should try different friend circle, different group circle and all. And in terms of your romantic relationship, you can go for it. But again, you should keep in mind that okay, I have another project or other projects also, right? So don't keep too much time on that. ठीक है, एक्सप्लोर करो, बट डोंट टेक टू सीरियसली, राइट? बिकॉज योर प्रायोरिटी वन शुड नॉट बी दैट. योर प्रायोरिटी वन शुड बी सेल्फ लर्निंग, देन एक्सप्लोरेशन वाला थिंग, कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर वाला थिंग, कनेक्शन बनाना, एंड देन कॉलेज करिकुलम, एंड देन शुड बी योर रिलेशनशिप एंड दोज थिंग्स. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू हेल्थ. बहुत बार हम जब कॉलेज में जाते हैं ना, तो हमारा इंडिपेंडेंस आ जाता है. सो आई थॉट कि मेरे पास पैसा आ गया है, तो अब आई वांट टू गो फॉर दिस चॉकलेट, दिस चिप्स, दिस काइंड ऑफ जंक फूड, एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ दिस थिंग. ठीक है, and yeah, and you should avoid this is a huge mistake. It can affect your health, and you should go for the sports and gymming thing in college. जितना हो सके उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करो. हेल्थ को कैसे बेटर बनाना चाहिए उसके बारे में एक्सप्लोर करो. एंड बहुत बार ड्रग्स के रिलेटेड चीज़ें भी होता है कि हम उसमें फंस जाते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यार तुम इस टाइप ऑफ फूड को मत खाओ, या जंक फूड मत खाओ, या ड्रग्स मतलब ड्रिंक वगैरह मत करो, एंड समथिंग लाइक दैट. दिस इज अप टू यू. But the thing is, you can try, but the thing is the self control. You have to be come aware of that कि भाई कौन सा चीज़ में मेरा ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट. सो बिकॉज यू आर नाउ इंडिपेंडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, so you have to keep those things in mind, right? And yeah, I have made few mistakes there, so I thought कि okay, this can be a good point. Yeah, these are the 5 points. Especially important point is as self learning पे ध्यान दो. ज़्यादा एक्सट्रीम मत जाओ कोई भी चीज़ में, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर ध्यान दो, एंड डोंट बी डिपेंडेंट ऑन कॉलेज इटसेल्फ. ठीक है, कॉलेज में हो तो कॉलेज स्टडी में ज़्यादा ध्यान मत दो, मतलब डिपेंडेंट मत हो. फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी. कॉलेज में हो तो प्लेसमेंट में फोकस मत करो, फोकस ऑन मतलब प्लेसमेंट में ओनली फोकस मत करो, फोकस ऑन डेवलपिंग स्किल्स, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, एंड हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम दैट, राइट? सो बेसिकली बी अकाउंटेबल. एंड या, दिस इज़ द मतलब मोस्ट बैड पार्ट ऑफ द कॉलेज, कि हम अकाउंटेबल नहीं होते कॉलेज में जाने के बाद. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर मनी, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल ग्रोथ. अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. ठीक है. सो या, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों से, एंड या, बाय बाय.